I request the Dean, Principal and Controller, Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Dr. Swati Garg, to escort our chief guest and other dignitaries to the dais. Please join me with a huge round of applause to welcome the guest of honor, Emeritus Chairperson, Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Dr. M.N. Swankar, Chancellor, Mahatma Gandhi University, Dr. Vikas Chandra Swankar, and Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, Dr. Sudhir Sachdev. तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट और सभी डिग्निटरीज अपनी जगह नहीं ले लें। Before we begin with the celebrations, as a mark of auspiciousness, joy and prosperity, may I request our chief guest and other dignitaries on the dais to light up the lamp and seek blessings of Lord Ganesh. Swarupam Vishwarupam Divyajnanam Ganesha Prathama Pujam Gajakarnakah Shubhakarneshu Ganesha Ekadantaya Goje Pradaya Veda Garbha Ganesha। आई तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। It's time now to welcome our chief guest and other guests. And of course, no welcome is complete without the presentation of flowers. May I request, first and foremost, the Chancellor of our university, Dr. Vikas Chandra Swankar, to welcome our chief guest, Srimati Meena Swankar ji, and present her with a floral bouquet. I would also request the Vice Chancellor of our university, Dr. Sudhir Sachdev, to welcome Srimati Meena ma'am by presenting her with a floral bouquet. On behalf of the entire staff and administration of the university, I request Mr. Sukanta Das, Mr. Virendra Parekh, Mr. Pradyuman Singh, Mr. Subodh Vyaspal, Ms. Deepthi Bhansali, Ms. Rajni Haldia and Mr. Radhe Kumar to please come up on the stage and welcome our chief guest, Meena ma'am. I now call upon Registrar Mahatma Gandhi University, Dr. A.K. Sharma, to please come up on the stage and present a bouquet and welcome Emeritus Chairperson, Dr. M.L. Swankar. I request Dr. R.C. Gupta, Medical Superintendent, Mahatma Gandhi Hospital, to please come up on the stage and present a bouquet to Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Vikas Chandra Swankar. I request Mr. Sukanta Das to please come up on the stage and present a floral bouquet and welcome the Vice Chancellor of our university, Dr. Sudhir Sachdev. Seated off the dais, may I request Dr. Puneet Rijwani to please come in front and present a floral bouquet and welcome Shri R.R. Soni ji. Raghav to please come in front and welcome Mrs. Jayashree Swankar, who is wife of the Director of Hospital Management, Dr. Shobhit Swankar. Wife of Mr. Sukanta Das, I request Ms. Deepthi Bhansali to present a floral bouquet and welcome her. Lovely ladies seated in the auditorium. We can clap for ourselves also. अपना वजूद भुलाकर न जाने कितने रिश्ते निभाती है, अपना वजूद भुलाकर न जाने कितने रिश्ते निभाती है, सलाम है उस औरत को जो घर को घर बनाती है। Earlier, the role of women was only limited to household work. In fact, in the past, women were brought up to believe that their role is restricted to household work only, and hence they were deprived of any freedom or education. But we are fortunate that over the years, this mentality has changed. Now, there is no area where women are not working, rather excelling. I am sure you all will agree that women are better at handling multiple responsibilities at the same time.
The present day women are not only getting equal opportunities at their workplace, but also playing leadership roles in their organizations. In fact, their contribution towards the society has increased immensely. I now request, on this joyous occasion, the Vice Chancellor of our university, Dr. Sudhir Sachdev, to share his views and formally welcome our सब लोग यहाँ विमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए एकत्रित हुए हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं वाइस चेयरपर्सन इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट श्रीमती मीना जी स्वर्णकार। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये संस्थान, ये विश्वविद्यालय जिसका सन 2000 में बीजारोपण हुआ या यूं कहें 1998 में एनओसी मिली और उसके बाद से डॉक्टर एम एल स्वर्णकार जी ने हमारे आज के समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे प्रणेता हैं, मार्गदर्शक हैं, संस्थापक हैं इस संस्थान के। योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान बनाया कि विश्वविद्यालय बन सके और बाकी सारी कहानी हम जानते हैं और विगत वर्षों की इस यात्रा, इस विकास यात्रा से भी बहुत से लोग यहाँ जो बैठे हैं वो परिचित हैं कि किस तरीके से इस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय का स्वरूप लिया। लेकिन आज इस अवसर पर मैं ये बात स्पष्ट रूप से आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि इस पूरे स्वरूप के साकार होने में जो एक शक्ति स्तंभ की तरह एक ऊर्जा इस पूरे कार्यक्रम के पीछे, इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे, इस पूरी योजना के पीछे थी, वो श्रीमती मीना जी स्वर्णकार थी। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर परम आदरणीय डॉक्टर एम एल स्वर्णकार जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन चांसलर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी विकास चंद्र जी स्वर्णकार, डीन प्रिंसिपल कंट्रोलर स्वाति जी, श्री आर सोनी जी, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी और भी तमाम जितने भी सीनियर प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का विश्वविद्यालय की तरफ से आज के इस अवसर पर विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये बड़े गौरव की बात है कि हम उस भारत देश में जन्म लिए, यहां पैदा हुए, जिसकी संस्कृति के मूल आधार में ही हमारे ऋषि मुनियों ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कर दी थी। लेकिन मूल्यों की संस्थापना कर देने के बाद मूल्य सदैव संस्कृति में संवाहक होते रहे, संप्रेषित होते रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी यात्रा करके संवर्धित होकर के आने वाली संततियों को मिलते रहे। ये एक महत्वपूर्ण बात है और यही वजह है कि हम अपने मूलभूत सिद्धांतों को पुनः पुनः इस प्रकार सेलिब्रेट करके उत्सवपूर्ण तरीके से पुनः पुनः याद दिलाते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना है। हम उस संस्कृति में पैदा हुए जिस संस्कृति में आप देखिए कि हमारी पूजा पद्धतियों में भी हम दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हम इनकी आराधना करते हैं। शक्ति स्वरूप दिव्य स्रोत यदि हम किसी को मानते हैं तो मां जगदम्बा को, मां भगवती को मानते हैं। बावजूद उसके भी पुनः पुनः समाज में विकृतियां पैदा होती हैं और लोग दिग्भ्रांत होकर के इस पद्धति से दूर हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये ऐसी कमी क्यों पैदा हुई, ऐसी बात क्यों आई समाज में कि हम नारियों के सम्मान को भूलने लगे। इसीलिए बार बार स्मरित कराया जाता है कि हम यदि इस संसार को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो जो सर्जक है नारी, जिसने जन्म दिया है, जो जन्मदात्री है, हम चाहे ईसा मसीह को पूजें, चाहे पैगंबर को पूजें, चाहे श्री राम को पूजें, गुरु नानक को पूजें, उनको भी जन्म देने वाली महिला ही है। तो हम उसके सम्मान में एक पल का विचार भी आ जाए तो इससे बड़ा पाप और इससे बड़ी कृतज्ञता कोई नहीं हो सकती। परम आदरणीय डॉक्टर एम एल स्वर्णकार जी, मैं विगत
वर्ष 20 क्या उससे अधिक वर्षों से भी कहूं तो लगातार जब भी हम उनका उद्बोधन सुनते हैं इस डायस से, इस मंच से, हर बार स्वर्णकार जी बार बार हम सबको एक ही बात कहते हैं कि महिलाओं की रेस्पेक्ट करो, स्त्रियों की रेस्पेक्ट करो। यदि हम इनका सम्मान नहीं करेंगे तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। नारियां आज समाज में अपनी स्थिति निरंतर मजबूत कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके भी हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है, अपने विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय में शिक्षा देनी है कि वो सदैव इस मूलभूत सिद्धांत का अनुपालना करें कि हमें नारियों का सम्मान करना है। आज नारियां चाहे अंतरिक्ष की बात हो, चाहे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की हम बात करें विकास की, विज्ञान की, किसी भी तरह की, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी का हस्तक्षेप ना हो या जिस स्थिति तक पहुंचने में नारियों ने योगदान न दिया हो। तो इसलिए नारियां सदैव अनुशंसा, प्रशंसा और सम्मान की हकदार हैं। और हम इस मंच से आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं जो ये संदेश लेके जाएंगे, तो वो इस संदेश को सदैव अपने स्मरण में भी रखें और अपनी संपत्तियों में भी इसको संवाहित करें कि हमें नारियों का सम्मान करना है। और जितनी नारियां यहाँ बैठी हैं, मैं एक बार पुनः उनके स्वागत सम्मान में नत होकर के अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसे उस समाज के निर्माण में सतत रत रहें जहां नारियां जिस दुर्गा स्वरूप, जिस लक्ष्मी स्वरूप, जिस सरस्वती स्वरूप में रखी गई हैं, उस आदर सम्मान वो उनको सदैव मिले। वो जन्मदात्री है, विकास की यात्रा उस जन्म से ही शुरू होती है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। Thank you so much, sir. They say the wish for empowering humanity can be fulfilled by empowering women around you. यानी संपूर्ण मानवता का विकास चाहते हैं, केवल महिलाओं के सशक्तिकरण से ही ये संभव है। Any woman is complete in herself. She creates, she nourishes, and she brings about the change for development. She is both a powerhouse of strength as well as a reservoir of love. We are fortunate to be working in an institution where women like us are heading our respective departments and getting the opportunity to exhibit our leadership skills. I now invite the Honorable Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Vikas Chandra Swarnkar, to express his views on this occasion. Please give a huge round of applause for Dr. Vikas Chandra Swarnkar. Welcome our chief guest for the today's program and my mother, Srimati Meenaji Swarnkar, Chairperson, Chancellor Emeritus, and my father, Dr. M.L. Swarnkar. If Dr. Swarnkar is the Janak of this institution, my father, then I can say that my mother, Srimati Meena Swarnkar, is the Janani of this institution. I can say with authority that if she would not have been there, the institute would not have been there. So whatever you take out of this institution, whatever you gain in life, whatever you do in life, whatever you become, do share a part of that gratitude and attribute it to Srimati Meena Swarnkar. Our Vice Chancellor, Dr. Sujit Sastave, our principal, the first women principal of Mahatma Gandhi Medical College. And I also apologize that it took 19 years to have the first female principal, but still nevertheless we had it. Dr. Swati Garg, dignitaries in the audience, and various head of the departments like Deepti ji from HRD, Rajni madam from patient billing and patient relations, Dr. Bushra Fizal, lab director, Dr. Manju Raghav, HOD pathology, and a lot more. I pay my sincere gratitude to all of you and welcome you all to this International Women's Day program. Why is this day celebrated? I'll just go back in history for 10 seconds. In USA and Western Europe, in the early part of 20th century, there were severe disparities between men and women. For example, women were not given the right to vote. They cannot vote in elections. They could not vote in elections.
election at that time. They could not hold public offices. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब वो नहीं बन सकती थी। यूएसए में आज तक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई हैं। वर्क फोर्स inequalities was there, pay disparities were there. इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो वहाँ की वुमेन वर्क फोर्स थी, उन लोगों ने प्रोटेस्ट्स और मार्च करना शुरू किए। धीरे धीरे जो वहाँ के मेल वर्क फोर्स थे वो भी उनके साथ आए और इस तरह से 1913 से 1917 के बीच में वुमेन्स डे का कंसेप्ट जो है वो उसका जन्म हुआ। It is celebrated to raise awareness about discrimination, to drive gender parity, and to celebrate women's achievements. Personally, it's not really a good thing that we have to commemorate or celebrate Women's Day. God has made two forms of human beings, male and female. Then where is the inequality? Only two of us exist. There is no third one for all practical purposes. No other mammalian species is known to discriminate between their genders, except the phenotypic, that is the physical, and the genotypic, that's the genetic differences that are innate. We should respect this mool creation of God, that men and women are born equal. According to me, women are more superior than men. If you consider all the duties that are discharged by women, of family as a mother, of wife in childbirth and in raising the children and educating them, of taking care of their spouses, their in-laws, and even if you monetize this, it would be far more than what we actually earn as salaries. It is beautifully explained by our Prime Minister, और ये हमारी संस्कृति में भी है और ये बहुत गहरे संस्कृत श्लोक हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्तियों के रूप में स्थित है, उसे हम नमस्कार और बारंबार नमस्कार करते हैं। यहाँ पे जो इसके क्रिएटर हैं वो नारायण भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देवी को इसमें प्रधान रखा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, जो देवी सभी नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, उसे हम नमस्कार बारंबार नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभी धीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जो हम सब में चेतना है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पालन कर रहे हैं, वो सब भी नारी रूपी शक्ति का ही प्रतीक है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस चेतना की वजह से जो भी आप जीवन में अर्जित कर रहे हैं, जो आपके चेहरे पे तेज है, कांति है, वो सब फिर उसी स्त्री रूपी दिव्य ऊर्जा के रूप में हम सभी में विद्यमान हैं। As the head of this institution, I would instruct, I would request that all of us should respect women at our workplace. We should have one motto to make this organization the best place for women to work. They should feel safe, they should feel celebrated, and they should be promoted. आपकी बॉस हैं अगर फीमेल, तो आप उनका रिस्पेक्ट करिए। आपकी कलीग हैं, then she deserves respect. And if she is your subordinate, she deserves respect plus your protection. And this is not only for the male members of our team, it applies both to male and female members, that we have to make sure that we make everyone feel comfortable and we should respect them. तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में रामचरितमानस में कहा है, जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी दिलार गोसाई तजऊ चौथ की चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, यश, सुबुद्धि, शुभ गति और हर प्रकार के सुख चाहता है, वो पर स्त्री, the one who is not your wife and who is not your mother, उसको जैसे चौथ का चंद्रमा होता है उसको देखना शुभ माना जाता है, ऐसे उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। He has gone to that extent. आपकी वाइफ हैं, she is your wife definitely, and then you have your mother. All the ladies apart from these two,
they deserve a special place equivalent to your mother in your life, be it your daughter, be it your sister, be it your bhabi or a colleague. अगर हम ये जो हमारी मूल संस्कृति के भाव हैं इनको अपने सभी एक्ट्स के केंद्र में, सभी कर्मों के केंद्र में रखेंगे तो निश्चय हमारी खुद की तो तरक्की होगी ही, ये संसार भी एक ज़्यादा अच्छी जगह रहेगी सबों के लिए. With these words, I would not like to take much of your time, and once again I congratulate you on the International Women's Day. Thank you. As already mentioned by our Vice Chancellor Dr. Sudhir Sachdev, as such, the Honorable Emeritus Chairperson Dr. M.L. Swankar has always advocated women empowerment and gender equality, and in all his addresses on various occasions, he has always appealed to observe a respectful conduct towards women. But today we are eagerly waiting, sir, to seek your blessings. Most humbly, I request Emeritus Chairperson Mahatma Gandhi University, Dr. M.L. Swankar, to enlighten us with his words of wisdom. Mrs. Meena Swankar, Chief Guest of today's function, Women's International Women's Day, Dr. Vikas Swankar, our Chairman and Chancellor, Dr. Sudhir Sachdev, our Vice Chancellor, Dr. Swati Garg, Principal of Mahatma Gandhi Medical College, distinguished dignitaries, my younger brother, Sri Ramratan Soni, Dr. Surin Sharma, my younger daughter-in-law, Jayashree Swankar, many heads of the department, especially the ladies head of the departments like Dr. Usha Shekhawat is sitting here, Dr. Manisha is sitting here, other doctors are sitting here, and all the audience. I welcome you on this day, and I congratulate Dr. Sukant and his team that they are celebrating it in a very decent and nice way. As said by Dr. Vikas, that we should consider every woman as your mother or your sister. पर प्रैक्टिस में और प्रीचिंग में बहुत फर्क है. जो जेंडर इक्वलिटी है, अलग यूनाइटेड नेशंस ने और वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज ने काफ़ी टाइम से इस पर रेजोल्यूशंस पास किए हैं that there should be sexual equality, gender equality in all resources, on all resources and in all political making decisions. पर क्या वास्तव में सच है? किसी भी देश में, किसी भी काल में क्या सच है? हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता है. इस चीज को कैसे मिटाना ये सोच रहे हैं. अगर आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जाए तो रामायण के काल की बात कर लें, तुलसीदास रामचरितमानस में जब माता पार्वती का भगवान शंकर से विवाह हो रहा था और माता पार्वती जो हिमालय नरेश की पुत्री थी, उनकी माँ मेना जब विदाई हो रही थी तो कहती हैं, ये बड़ा फेमस दोहा है, पराधीन सपने सुख लाए. वहाँ का इसका जो शुरू का वाक्य हुआ, शुरू का श्लोक आधा पाठ है, कसबिद सजी नार जगमाई, हे विधाता तूने किस समय नारी को जन्म लिया कि ये पराधीन सपने सुख नहीं. अपनी जब बेटी को विदा कर रहे तब ये बोल रही है, माता लेना, माता पार्वती को बोल रही है, जो जगदम्बा है उसको बोल रही है, जो सबसे बड़ी शक्ति उसको बोल रही है. जैसे ही अपन प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, न केवल जेंट्स, न केवल मेल ही लेडीज के दुश्मन है, पर लेडीज भी लेडीज के दुश्मन. आप प्रेगनेंसी होती है, आप लड़का चाहते हो, फिटिसाइड्स होते हैं, अबॉर्शंस होते हैं कि मैं बॉय चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू हो जाता है.
अगर आपकी लड़की होगी कोई कंजेनिटल मॉलफॉर्मेशन है, यदि लड़का है तो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे। बाल्यावस्था से देख लीजिए, आप ज्यादातर 90% केसेस की बात करें, लड़की है तो आप नहीं करोगे, रिसोर्सेज को बचा कर रखोगे। और जब बड़ी होती है, बेटियों को स्कूल भेजना है तो अच्छे से अच्छे स्कूल के प्रबंध करोगे, बाहर भी भेज दोगे। लड़कियों को पहले दूर जाके क्या करेंगी, यहीं पढ़ लेते हैं। और जब बड़ी होती हैं तो आपको डर सताता है, आप रोजाना अखबार में पढ़ते हो, रेप एंड अदर थिंग्स के बारे में। मैं ज्यादा उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। क्लास में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो किस तरह का व्यवहार लड़कियों से होता है, किसी से छिपा नहीं। आप जॉब करते हो, अभी हमारे गीता मंथन हो रहा था, तो जो गीता मंथन करने आए थे गोस्वामी जी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ इंडियन मैथोलॉजी, उनकी जो समकक्ष प्रोफेसर थे, तो उन्होंने बड़ी चुपके से कहा कि मेरी सैलरी बाकी प्रोफेसर से कम है। तो वो बड़ा सरप्राइज थी कि मैं अमेरिका में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एक लेडी प्रोफेसर कह रही कि मेरी बाकी मेल प्रोफेसर से सैलरी कम है बिकॉज आई एम ए फीमेल प्रोफेसर। ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ, जो भी हमारे चांसलर साहब ने बोली थी। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे मिटाना है, ये एक चैलेंज है। पर हमारी जो संस्कृति वो बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आदमी का जो दोष है वो विषय गोचर का दोष है, दृष्टि दोष है। हम बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, बहनों के, लेडीज के लिए तो 50 तरह के प्रतिबंध कर देते हैं। कभी अपने बेटों के बारे में, मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते कि वो किस निगाह से देख रहे हैं। जो भी डॉक्टर साहब ने जो बात की, ऑनरेबल चांसलर ने, कि जो चाहे आपन कल्याण सुजय सुगत संपत्ति सुनाना, उसमें कुदृष्टि का दोष है। जब भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली ने पूछा कि भगवान आपने मेरे को क्यों मारा, मेरा क्या दोष था? ना तो आपका सुग्रीव कोई बहुत ज्यादा फ्रेंड है, ना मैं ही कोई आपका दुश्मन हूं। हम दोनों भाई भाई हैं, लड़ रहे थे आपस में। हम बाहर जाती है, हमने अगर उसकी वाइफ से शादी कर ली तो कौन सा इसमें बहुत बड़ा पाप हो गया? उन्होंने बोला नहीं, समाज की व्यवस्था होती है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, 67 कन्या समय चाहे। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधु और कन्या, इनको मारने में कोई दोष नहीं होता। इसलिए मैंने दिल को पेट में झुक के मारा, क्योंकि सामने आने पर उसमें आधा बल आ जाता है। इस तरह की हमारी संस्कृति रही। दुर्गा सप्तशती में बड़ा जबरदस्त श्लोक है इसमें भगवती का, या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, पापात्म नाम कृत धियाम हृदय सुबुद्धि, श्रद्धा सताम कुलजन प्रवश्य लज्जा, ताम ताम नताम देवी परपाल विषम। जो सुकृत करने वाले हैं, उनके यहाँ वो श्री के रूप में स्वयं निवास करते हैं लक्ष्मी, वो शक्ति, वो नारी स्वयं वहां पर निवास करती है। और जो पापात्मा है, जो दुराचारी है, उनके यहाँ वो दरिद्रता के रूप में वास करती है। जिनकी बुद्धि अच्छी है तो सुबुद्धि के रूप में वास करते हैं, कृत ध्यान बुद्धि। जो सत्पुरुष है, श्रद्धावान, उनके यहाँ श्रद्धा की तरह वास करते हैं। और जो कुलीन पुरुष है, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए, उनमें वो लज्जा के रूप में वास करते हैं। ऐसी देवी हम आपको बार बार आप विश्व पाए, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, इसको आप ढालें। आप एटलीस्ट बाहर ना जाए तो हमारे संस्थान में, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और इसकी जितनी डिफरेंट यूनिट्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स है, डेंटल कई ब्रांचेज हैं। उनमें अपने जो कलीग्स हैं,
उनको रेस्पेक्ट दें। आप पत्राचार करें, आप टेक्स्ट करें, मैसेज करें तो हमेशा रेस्पेक्टफुल मैसेज करें। कोई गंदी भाषा का या सिंपल कैजुअल लैंग्वेज का प्रयोग ना करें। आप दिल से सम्मान करें। आप देखिए कितनी तरक्की होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैंने IVF शुरू किया उस समय डॉक्टर सुधीर आप विटनेस हैं, रिटर्न है, सब लोग हैं, कभी भी अबॉर्शन फॉर मेडिकल रीजंस नहीं किया। सोशल रीजंस का भी अबॉर्शन नहीं किया। अनलेस की मिस्ड अबॉर्शन है या कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है तो बात अलग है। तो एक ये, जबकि उस जमाने में अभी भी MTP और लेप्रोस्कोपी और विद MTP ये तो एक सॉर्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर होती थी गायनेकोलॉजी की। कितने आप, जब हम बॉम्बे में थे तो जो लोकल ट्रेन थी उसमें लिखा रहता था पर्ल सेंटर, अबॉर्शन सेंटर, फलाना सेंटर। तो आप छोटे छोटे प्रलोभन में नहीं आए। हमेशा हमें किसी से, यूनाइटेड नेशन से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बीच हंटिंग होती थी। यहाँ हमारी जो राजपूत की लेडीज होती थी, हमारे यहाँ सिर्फ हार और जीत होती थी। युद्ध के भी नियम होते थे, जो सब कुछ लगता था कि भाई हम नहीं जीत सकते थे। राजा जब हार के वापस आता था तो जो सबसे बड़ी जो रानी होती थी वो सबसे पहले कूद के मर जाती थी। वो सती प्रथा चालू है। महारानी पद्मिनी का आपने सुना है। देयर वर ओनली टू थिंग, आइदर विन और डाई, नो सेकेंड थिंग। हालांकि फिर उसके बाद में और एजेस में गलत इफेक्ट आए और फिर अंग्रेजों ने भी कानून बनाए कि भाई ये प्रथाएं बंद होनी चाहिए। जबकि उनके यहाँ लेडीज को नेकेड करके मारा जाता था। इसलिए वो शब्द कोई नहीं, और हमको वो शिक्षा देते थे, हमको गुलाम बनाने की कोशिश करते थे। हमारी परंपरा बहुत सुदृढ़ है, बहुत सशक्त परंपरा है हमारी। बात इतनी है कि उसको अपन जीवन में ढालें। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि अपने कलीग्स का रेस्पेक्ट करें, अपने जूनियर्स का रेस्पेक्ट करें, उनका प्रोटेक्शन दें, अपने सीनियर्स का रेस्पेक्ट करें। और लड़कियां किसी भी तरह से, आप जेनेटिकली देख लो, हमेशा स्ट्रॉन्ग होती हैं। प्रीमेच्योर अगर कोई इन्फेंट हो गया है और वो गर्ल है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल आप वो, या ऑब्स्टेट्रिशियन नो दिस फैक्ट। सुविधाओं के अभाव में वो कुछ हो जाए तो बात अलग। इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है। आप इक्वलिटी, जो जेंडर इक्वलिटी है वो करें अपने देश और काल के हिसाब से। ये कोई इक्वलिटी नहीं है कि साहब नारी स्वतंत्रता के नाम पर आप क्लब में जा रहे हैं, आप पहनने में मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं या कोई और कुछ कर रहे हैं, उसमें तो भाई लड़के करते हैं, हम भी करेंगे। दिस इज नॉट द इक्वलिटी, दिस इज नॉट द फंडामेंटल ऑफ द वीमेंस इक्वलिटी। इक्वलिटी रिसोर्सेज में, इक्वलिटी उनके पॉलिटिकल डिसीजंस में, इक्वलिटी उनको अपॉर्चुनिटीज देने में, इक्वलिटीज उनको रेस्पेक्ट करने में। बाकी जो समाज के नियम को तो फॉलो करें। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा न कहते इतना ही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान करें और अपनी जितने भी लेडी कलीग्स हैं उन सबको जितना सम्मान देंगे उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ आज। यदि आपने स्त्रियों को सम्मान दिया अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह, अपनी माँ की तरह, तो sky will be the limit for the progress. This is my words to you. With this, thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. It's our privilege to have the Honorable Vice Chairperson, India Education Trust, Srimati Meena Swankarji, as our chief guest for today's program. And we all know that she is the better half of Dr. M.L. Swankar, sir. We agree that this institution owes its existence and glory to the tireless efforts and determination of Dr. Swankar,
but we also believe that without your support, he would not have been able to do justice to this mission. In this entire journey, you have not only stood by him night and day, but you have also transferred his legacy, his values to the next generation of Dr. Vikas and Dr. Shobhit. Indeed, you are a perfect combination of elegance, simplicity, strength and affection. जैसा डॉक्टर विकास ने कहा, अगर डॉक्टर स्वर्णकार इस संस्था के जनक हैं, तो मीना मैडम इस संस्था की जननी हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म से सभी जननियों के लिए ये 2 लाइंस, जिसके साथ मैं मैम को इनवाइट करूंगी। चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एज आई इनवाइट सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। परम आदरणीय डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार जी, एमराइटिस चेयरपर्सन, डॉक्टर विकास चेयरपर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूट, डॉक्टर सुधीर सचदेव वाइस चेयरपर्सन, डॉक्टर स्वाति प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट, galaxy of expert doctors, medical and paramedical staff, dear students, तथा सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनगण, सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एक महिला आपकी बॉस भी हो सकती है तथा एक महिला आपकी सेविका भी हो सकती है। आपकी पत्नी, आपकी बेटी, दादी, नानी आदि सभी माँ दुर्गा के रूप हैं, अतः सभी सम्मानीय हैं। महिला हर रूप में आदरणीय है। एक महिला में जो ममत्व की भावना होती है वह उसे पुरुष से भिन्न बनाती है। मुझे तो थोड़ा ज्योतिष में भी इंटरेस्ट है। चंद्र ग्रह हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, अतः यदि हमें अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना हो तो माँ को प्रसन्न रखना चाहिए। चंद्रमा हमारा मन है, अगर हमारा मन स्ट्रॉन्ग होगा तो हम काफी कुछ काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसलिए माँ को हमेशा आदर सम्मान दें और उनको हमेशा प्रसन्न रखें। साथ ही पत्नी को प्रसन्न रखने से, उसका आदर सम्मान करने से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्र स्ट्रॉन्ग होने पर ऐश्वर्य की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। अतः अगर धनवान बनना चाहते हैं तो पत्नी को प्रसन्न रखिए और उनका सम्मान कीजिए। इसी तरह से बहन और बेटियों का सम्मान करने से, उन्हें प्रसन्न रखने से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध हमारा नर्वस सिस्टम है। हमारा दिमाग अच्छा होगा तो हम सारे काम अच्छे से करेंगे। साथ ही हमारे व्यापार का कारक भी बुध ग्रह ही है। व्यापार में भी वृद्धि होगी। अतः महिलाओं का सम्मान और उनकी प्रसन्नता अति आवश्यक है। साथ में मैं महिलाओं से भी गुजारिश करूंगी कि वे अपने स्वयं की स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि स्त्री और पुरुष में कितना भी समानता का समीकरण स्थापित हो गया हो, परिवार की धुरी तो स्त्री ही होती है। उसी के चारों तरफ परिवार घूमता है। मेरे ख्याल से मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करती हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, इतना प्यार व सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ और मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ इस प्यार सम्मान के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए बैक स्टेज प्रिपरेशन हो, मैं कुछ लाइंस और महिलाओं के सम्मान में पढ़ देती हूँ। उन्वान का मतलब होता है टाइटल, तो ये एक छोटी सी नज्म है।
कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत, कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत, हर जात की असली निगहबान है औरत। हव्वा कहीं मरियम कहीं दुर्गा कहीं सीता, ताकत कहीं सीरत तो कहीं शान है औरत। ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, गर प्यार से समझो बड़ी आसान है औरत। माँ कह के तेरे पाँव में जन्नत दी खुदा ने, तू जान ले किस दर्जा तेरा सम्मान है औरत। थैंक यू। And now it is time to felicitate our chief guests and other dignitaries. First and foremost, I request Mr. Sukanta Das and Ms. Deepti Bhansali to please come up on the stage and felicitate our chief guest, Srimati Meena Swarnkarji, by presenting her with a memento and also a shawl. Dr. A.K. Sharma and Dr. Anjan Kalia to please come up on the stage. Dr. A.K. Sharma and Dr. Anjan Kalia to felicitate Dr. M.L. Swarnkar sir. Dr. R.C. Gupta and Dr. Jaya Chaudhary to felicitate the Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Vikas Chandra Swarnkar. Dr. Manu Soni, please join Dr. Arvind Vijay in presenting a memento to the Vice Chancellor of our University, Dr. Sudhir Sachdev. Mr. Bhagwan Sahai Sharma and Mr. Devendra Singh Solanki to please come up on the stage to felicitate our Dean, Principal and Controller, Dr. Swati Garg. Narendra Padiyar to please present a memento and felicitate Shri R.R. Sodhi ji. And I request you to felicitate Mrs. Jayashri Swarnkar. Taking the program ahead, we have some cultural performances by university staff. I request all the dignitaries to please take their seats off the dais and we will shortly be starting with the cultural performances. आतुर है अपने कुछ विचार हम सबके सामने रखने के लिए। राधेश्याम जी आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। पूजनीय श्रीमती मीना सोनकर मैडम जी के लिए मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। करुणा की सागर दया की देवी हैं आप, ममता की सागर क्षमा की मूरत हैं आप, इस संस्था की पहचान और सहनशीलता का स्वरूप हैं आप, जननी जन्मदात्री दुर्गा शक्ति स्वरूप भगवती जैसी देवी माँ हैं आप। पूजनीय डॉक्टर एम.एल. सोनकर सर, परम आदरणीय डॉक्टर विकास चंद्र सोनकर सर, परम आदरणीय डॉक्टर सुधीर सचदेव सर, परम आदरणीय डॉक्टर स्वाति मैडम जी, परम आदरणीय श्री आर स्वामी सर एवं समस्त सम्माननीय महिलाएं, महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति का अभिवादन एवं सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको हर वर्ष याद दिलाता है कि हमने महिलाओं को कितना सम्मान दिया और उनके उत्थान एवं विकास के लिए आपने क्या कदम उठाए। आज के इस दौर में जब महिलाएं घर से लेकर कार्यालय सब कुछ संभाल रही हैं और किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं पाई जाती हैं, आइए हम सब मिलकर इन महिलाओं के उत्थान, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस दिन प्रण लेते हैं कि हम यथासंभव प्रत्येक महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेंगे और स्वयं भी उनका सम्मान करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे।
आज की महिलाएं अपनी शक्ति और क्षमताओं का एहसास करती है और समाज तथा विश्व में फलस्वरूप योगदान करने के लिए घर से बाहर निकलती है। ईश्वर ने स्त्री को अपने स्नेह के प्रतीक के रूप में बनाया है, जो न केवल अपने लिए सही जीवन का नेतृत्व करती है बल्कि दूसरों के लिए भी सशक्त रूप से मजबूत बनती है। महिला सशक्तिकरण केवल यह सुनिश्चित करने से अधिक शामिल है कि महिलाओं को उनके मूल अधिकार मिले। अपने सशक्त रूप में महिला सशक्तिकरण में स्वतंत्रता, समानता के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पहलू शामिल है। इसके माध्यम से वास्तविक प्रयास है सुनिश्चित करने में निहित है कि हम महिला पुरुष समानता लाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, लोगों को जागने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। कोविड-19 जैसी महामारी में जब कोविड से संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, उस समय हम सबकी सम्मानीय श्रीमती हरमन मैडम जी ने होम केयर सेंटर की कमान संभाली थी। मैडम जी ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए घर पर ही मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई थी और ना जाने कितने मरीजों की जान बचाई। मैडम जी, हम सब आपके इस हुनर एवं कार्यशैली को सलाम करते हैं। किसी कारणवश आप मैडम जी से बात नहीं ना करें। नारी दिवस बस एक दिवस क्यों नारी के नाम मनाना है। हर दिन हर पल नारी को उत्तम मानो, जनाब है नया जमाना है। थैंक यू। Now we move ahead for the cultural performances। और ये जो कल्चरल प्रोग्राम है ये अलग अलग टीम्स की तरफ से परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ डांस परफॉर्मेंसेस। और इसमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा पिलर हमारे इंस्टीट्यूट का नर्सिंग टीम की तरफ से एक घूमर डांस का प्रेजेंटेशन है। मैं जैसे ही इन डांसर्स को इनवाइट करती हूँ स्टेज पे, मैं जस्ट इनके नाम बोल रही हूँ। इस डांस को परफॉर्म कर रही हैं कविता सिस्टर, सरोज सिस्टर, संगीता सिस्टर, सीता, भाग्यश्री, करिश्मा, अमृता और मथुरा। तो मजा लीजिए इस घूमर डांस।
So the next dance performance is by the admin team of our university, and another dance performance is coming by the performers are Miss Bonita, Miss Dolly, Miss Deepa, Miss Pooja, Miss Chanchal and Miss Reena. Please give your good huge round of applause for the next dance performance.
कि ये जो डांस परफॉर्मेंसेस हैं ये सिर्फ 2 दिन की तैयारी के बाद हो रही हैं और ये जितने भी परफॉर्मर्स हैं कल भी यहाँ ऑडिटोरियम में आके सबने प्रैक्टिस की है साथ मिलकर इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस को बनाने के लिए। तो नर्सिंग टीम की परफॉर्मेंस हो गई, एडमिन टीम की हो गई, अब कौन सी टीम रहती है? डॉक्टर्स टीम। तो अब अगला डांस मेडले लेके आ रही हैं हमारी डॉक्टर्स, डॉक्टर चेतना मेहरोल, डॉक्टर निवेदिता, डॉक्टर शिखा ढाल, डॉक्टर प्रियंका सोनी, डॉक्टर सोनी मंडल and Dr. Ruchi. Please give a huge round of applause to the doctors team. मिट्टी पे खींची लकीरें रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। हस्ती तेरी विशाल हो, कुदरत का तू कमाल। मनमोहिनी तेरी अदा, तुझे जब देख ले तू मेरी अदा, बल से झड़ 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 नाच चमक चमक बिजली दीवानी है बेमिसाल तू, कोई कोई अनछुई तुझ में है कुदरत सारी, कोई तुझ में है कुदरत सारी, कोई कोई तुझ में है कुदरत सारी, कोई कोई। इनवाइट कर रही हूँ डॉक्टर विमल माथुर मैम को, जो एक खूबसूरत सा गाना हम सबको सुनाएंगी। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू डॉक्टर विमल। तो है
थैंक यू मैम। और डॉक्टर्स की एक और परफॉर्मेंस लेके आ रही है अगली टीम। सो आई इनवाइट डॉक्टर अर्चना पालीवाल, डॉक्टर श्वेता मंगल, डॉक्टर निकिता, डॉक्टर प्रगति कौरानी एंड डॉक्टर अभिलाषा फॉर द नेक्स्ट डांस परफॉर्मेंस। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिकती हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिकती हर बाला, वो किसना, वो किसना, वो किसना होली मिलन समारोह भी हो गया। और अब अगली टीम है एक और राजस्थानी डांस परफॉर्मेंस बाय द नर्सिंग टीम। सो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू द नर्सिंग टीम।
अगली डांस परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाऊं टीम को, उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने नाम इसलिए नहीं लिए थे इन डांसर्स के कि ये सब जो पहला डांस करके गए थे नर्सिंग टीम, उनमें से ही सारी डांसर्स थी, ये अभी जिन्होंने दूसरा डांस भी प्रेजेंट किया है। एंड नाउ वी हैव अनदर डांस परफॉर्मेंस बाय द एडमिन टीम, और इस डांस को परफॉर्म कर रही हैं मिस रजनी हल्दिया, मिस ज्योति, डॉक्टर शुभी श्रीवास्तव, मिस नंदिनी, मिस गरिमा और मिस वंदना। तो जोरदार तालियों से बुलाते हैं हमारे अगले डांसर। जाओ जी, मन दीद कराओ जी, क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब जानू मैं तो हरी, हर सले उन बंगाली में कहने लगे, मर उड़न जागी हो कहीं चंदा मतारी चांदनी बनता मन में बा एक सीरे झुम 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 ओ मर उड़न जागी हो कहीं चंदा मतारी चांदनी बनता मन में बा एक सीरे झुम 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 This was another enthusiastic performance, and now we are moving towards the last performance of this afternoon. और जैसा मैंने कहा था, क्योंकि होली भी अभी अभी गई है, तो फिर इसे होली मिलन की तरह ही मना लिया जाए। And we have this last performance, that is the राधा कृष्ण होली डांस, और इसको परफॉर्म कर रहे हैं हमारे एडमिन टीम, स्पेशली HR और अकाउंट सेक्शन से अक्षिता, मिस शिल्पी, Miss Deepa and Miss Pooja. So this is the last performance of the afternoon, Radha Krishna Folk Dance. उड़े गुलाल, कयो ने मंगे
होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही। I now invite our Dean, Principal and Controller Dr. Swati Garg to deliver the vote of thanks. But before Madam comes on the podium, I would just like to share कि ये जो सारी performances हुई हैं, एक डांसर जो स्टेज पे नहीं आई वो है मिस दीप्ति बंसाली, जो इस पूरे शो को डायरेक्ट कर रही थी और सभी डांसर्स से पर्सनली कोऑर्डिनेट करके और सबको कन्विंस करके नहीं हो जाएगा 2 दिन में, कहा जाओ प्रैक्टिस के लिए। Chief guest of today's program, Honorable Vice Chairperson India Education Trust, Mrs. Meena Swankar ma'am. Guest of honor, Emeritus Chairperson, Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Dr. M.L. Swankar sir. Chancellor of the University, Dr. Vikas Swankar. Vice Chancellor, Dr. Sudhir Sachdev. Dignitaries, ladies and gentlemen. Greetings to everyone on International Women's Day, celebrating women who work hard every day to achieve personal and professional goals. On behalf of all the women employees who are the part of Mahatma Gandhi University family, I take this opportunity to convey my sincere gratitude towards the management for organizing this grand event dedicated to the cause of women empowerment. Guests, Honorable Madam Meena Swankar, for gracing this program. Your presence here this afternoon has definitely made this event more meaningful and a memorable one. I deeply acknowledge the gracious presence of Honorable M.L. Swankar sir, who has always advocated the ideology of women empowerment. I extend my sincere thanks towards Dr. Vikas Swankar for his ever-encouraging approach towards gender equality. Words fall short to express my gratitude towards Dr. Sudhir Sachdev, who have always encouraged and supported the female staff of our organization. Also, I convey my best wishes and gratitude towards all the dignitaries and guests seated in the auditorium. Thank you, Mr. Sukanta Das, Dr. R.C. Gupta, Ms. Deepthi Bansali, Mr. Radhesham and their entire team, who has planned this event so meticulously to create a positive momentum among all women employees of our university, including doctors, nurses,
operational and paramedical staff, and ensured a smooth conduction of today's function. I'm sure this will motivate all of us to work positively and enhance coordination among all departments. Special thanks to all who have participated in today's cultural performances. Your enthusiastic performance after so much of intensive and exhaustive rehearsals in last 2 days has made this program a great success. Above all, thanks to all the lovely ladies who are a part of Mahatma Gandhi University family. And this celebration is all because of your association with this program. May all work together and set an example of gender equality and women empowerment for other organizations as well. Best wishes and thank you.